ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ। ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਅਵਾਰਡ 2019 ਫॉर ਹਿਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬਿਕਮਸ 4th ਸਟੇਟ ਟੂ ਪਾਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4th ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਕੇਰਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਈਟਾਨਗਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਟਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਨਲੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਟਾਨਗਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਬ ਬ੍ਰਿਆਂਟ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਐਟ 41 ਇਨ ਅ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬ ਬ੍ਰਿਆਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ? ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਸ਼ਿਵ ਭੋਜਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੋਵਲ ਹੈ ਬਲਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਨੋਵਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਨਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਨਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिता गया कुमार मुन्नन सिंह और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सुपर फैब लैब खोली जाएगी इंडिया की फर्स्ट कित्थे? केरला दे विच की जाएगी USA द्वारा। USA की एक कंपनी है MIT उसके द्वारा यह बनाई जाएगी उसके द्वारा यह बनाई गई है किस दे अंडर? केरला स्टार्टअप मिशन KSUM। याद रखना KSUM दे अंडर यह बनाई गई है केरला स्टार्टअप मिशन, इंडिया की फर्स्ट सुपर फैब लैब। नेक्स्ट है पाकिस्तान हैज़ कंडक्टेड अ सक्सैसफुल लॉन्च ऑफ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल गजनवी नाम की एक मिसाइल नूं पाकिस्तान ने टैसट किया है जिहड़ी कि सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इसनूं पाकिस्तान ने टैसट किया। नैक्सट है पद्म अवार्ड्स आप डिस्कस कर रहे हैं। पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए 1954 के। याद रखने ने 1954 के इंस्टीट्यूट किए गए सी और हर साल ये दिते जाते हैं। किहड़े साल छड्ड के 1977 तो लैके 1979 इत्थे 1979 आएगा एंड 1993 तो लैके 1997 तक। 2020 के टोटल किन्ने अनाउंस किए गए हैं? ये डाटा याद रखना है 141 टोटल अनाउंस किए गए हैं। 7 पद्म विभूषण ने, 16 पद्म भूषण ने
118 पद्म श्री अवार्ड्स ने, 7, 16 और 118, ठीक है, तीनों याद रखने ने। पद्म भूषण 7, 16 पद्म विभूषण, सॉरी पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 16 और 118 पद्म श्री अवार्ड्स। इस तो इलावा ये भी याद रखना है कि 34 वूमेनस ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 18 ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और 12 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 18 ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और 34 ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ठीक है। टोटल ये याद रखने ने जिन्ने भी चीज़ा ने। इस तो इलावा पद्म विभूषण की एक लिस्ट है, ये 7 के 7 अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाते हैं। पिछले साल 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला सी, इस साल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिता गया। किहड़े-किहड़े? जॉर्ज फर्नांडिस पब्लिक अफेयर्स बिहार, अरुण जेटली पब्लिक अफेयर्स दिल्ली, सुषमा स्वराज पब्लिक अफेयर्स दिल्ली, अनिरुद्ध जगनौथ पब्लिक अफेयर्स मॉरिशस। यानी कि पब्लिक अफेयर्स के कितने प्राइज हो गए? 4, 3 इंडिया के, 1 आउटर स्टेट यानी कि फॉरनर, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनिरुद्ध जगनौथ की स्पैशली याद रखना कितों ने? मॉरिशस तो, ठीक है। ये हो गया। उस तो बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन हो गए MC मैरी कॉम, एक आर्ट्स के हो गए चनू लाल मिश्रा। MC मैरी कॉम मणिपुर तो और चनू लाल मिश्रा यूपी तो, ठीक है। 2 नाम अपने यह याद रखने ने, MC मैरी कॉम स्पोर्ट्स मणिपुर, चानू लाल मिश्रा आर्ट्स यूपी, ठीक है। उस तो इलावा 7th नेम हो गया अपना उदूपी, VSSPAM वसैम उदूपी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के इन्हों का नाम है VSSPAM उदूपी, ठीक है। अपने याद किस तरीके रखना? उदूपी तो, उदूपी स्पिरिचुअल के दिता गया करनाटका तो, स्पिरिचुअल वर्क के दिता गया उदूपी नूं करनाटका तो ये बिलोंग करते हैं। पद्म विभूषण टोटल 7 पद्म विभूषण हो गए, ठीक है। ये याद रखने ने, ठीक है जी। उस तो बाद आप डिस्कस करते हैं अज की स्टेट है अपनी उड़ीसा बारे आप डिस्कस कर रहे हैं। उड़ीसा बनाया गया सी 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया सी उड़ीसा। इस बारे याद रखना उत्कल दिवस मनाया जाता है, उड़ीसा के स्टेटहुड डे को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। अगर एग्जाम के सीधा क्वेश्चन पूछा जाता कई बार उत्कल दिवस कदों मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, तो यह किहड़ी स्टेट का स्टेटहुड डे है? उड़ीसा का। कैपिटल तो लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल है उड़ीसा की। इस दे रिगार्डिंग एक न्यूज़ आप डिस्कस करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ने, गवर्नर गणेशी लाल, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ने, 21 लोकसभा सीट्स ने, राज्यसभा सीट्स 10 ने और विधानसभा की सीट्स कितनी ने? 147 विधानसभा की सीट्स ने उड़ीसा के। इस तो इलावा कोणार्क सन टैंपल, जगन्नाथ टैंपल, ये दोनों टैंपल कितने ने? उड़ीसा के ने। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के उत्ते है, हीराकुंड डैम कितने है? महानदी रिवर के उत्ते। फेमस डांस है उड़ीसी डांस है उड़ीसा का। एनीमल सांबर नाम का एनीमल है। बर्ड है इंडियन रोलर नाम का बर्ड कितने है? उड़ीसा के है। फ्लावर अशोका फ्लावर और ट्री फिग ट्री पाया जाता है उड़ीसा के। इस तो इलावा 2 इंपोर्टेंट नैशनल पार्क याद रखने ने, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका नैशनल पार्क और सिमलीपाल नैशनल पार्क दोनों कितने ने? उड़ीसा के ने। भीतरकनिका सिमलीपाल नैशनल पार्क्स। इस तो इलावा एलीफेंट रिजर्व याद रखना है, चंदका एलीफेंट रिजर्व कितने है? उड़ीसा के। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कितने है? उड़ीसा के। हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने है? उड़ीसा के। ये सारी चीज़ें याद रखनिया ने। भीतरकनिका नैशनल पार्क, सिमलीपाल नैशनल पार्क, चंदका एलीफेंट रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीराकुंड डैम और महानदी रिवर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ा ने याद रखनिया ने। और कोणार्क सन टैंपल और जगन्नाथ टैंपल का काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम के, ये याद रखने ने, ठीक है। नैक्सट है अज की अपनी फर्स्ट न्यूज़ है ग्रैमी अवार्ड्स। जिमें मैंने तुहानूं दस्सिया कि आप ग्रैमी अवार्ड डिस्कस करेंगे। ग्रैमी अवार्ड्स 2020 के जिहड़े हैल्ड किए गए हैं लॉस एंजलस USA के जिहड़े हैल्ड किए गए हैं, इसका किन्नवां एडिशन सीगा इसका 62nd। याद रखना किन्नवां एडिशन सीगा 62nd एडिशन सीगा ग्रैमी अवार्ड्स का, जिहड़ा हैल्ड किया गया USA के, ठीक है। लॉस एंजलस USA 62nd एडिशन।
एक पूरी लिस्ट है, आप डिस्कस करांगे। एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, व्हेन वी ऑल, ऐसे ALL आएगा, व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो बाय बिली एलिश, बिली एलिश इन्हों द्वारा यह एल्बम रिलीज़ की गई सी। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड दिता गया इसनूं, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी बिली एलिस नूं दिता गया बैड गाई दे लई, बैड गाय, बैड गाय दे लई दिता गया रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी सेम रहेगा अपना बैड गाय बिली एलिश, ठीक है। यानी कि अपने दो ही चीज़ां याद रखनियां ने, वैन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, तो दूजी बैड गाय। एल्बम ऑफ द ईयर इसनूं दिता गया रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय नूं दिता गया बाय बिली एलिश, ठीक है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट रहे ने बिली एलिस, ऐसे टी आएगा, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बिली एलिश। इस तो इलावा बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड दिता गया ट्रुथ हर्ट्स, ट्रुथ हर्ट्स नाम के सॉन्ग नूं दिता गया, जिहड़ी किन्हां द्वारा है, लीजो, लीजो द्वारा ट्रुथ हर्ट्स अवार्ड नूं दिता गया यह अवार्ड, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। नैक्सट है बेस्ट म्यूजिक वीडियो, बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड दिता गया लिल नेस एक्स एंड बिली रे साइरस नूं, किस दे लई, ओल्ड वूमन रोड दे लई, ओल्ड वूमन रोड दे लई दिता गया लिली नेस एक्स एंड बिली रे साइरस, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसनूं तुसीं बार बार रिवाइज करना है। बेस्ट रैप एल्बम दिता गया आईगोर नूं, आईगोर नूं मतलब टाइलर द्वारा बनाई गई सी आईगोर। बेस्ट रैप एल्बम, एल्बम का नाम है आईगोर और किन्ना द्वारा है, टाइलर द्वारा। बेस्ट म्यूजिक फिल्म होम कमिंग, होम कमिंग बेस्ट म्यूजिक फिल्म दिता गया, ग्रैमी अवार्ड्स बेस्ट म्यूजिक फिल्म के दिता गया होम कमिंग नूं। बेस्ट रॉक एल्बम, बेस्ट रॉक एल्बम दिता गया सोशल क्यूज नूं केज द एलीफेंट, केज द एलीफेंट। बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट कंट्री एल्बम दिता गया वाइल आई एम लिविंग नूं, बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड दिता गया वाइल आई एम लिविंग नूं, किन्ना द्वारा है, तानिया तक्कर, तानिया तक्कर द्वारा यह एल्बम है वाइल आई एम लिविंग, वाइल आई एम लिविंग बेस्ट कंट्री एल्बम है, ठीक है। ये याद रखने ने, 5 अवार्ड्स ये हो गए और 5 ए हो गए, ठीक है। 10 अवार्ड्स ने याद रखने ने अपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, ठीक है जी। नैक्सट है हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज एंबेसडर टू USA, इंडिया के एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं USA दे विच, ठीक है। इन्हों का नाम क्यों इंपोर्टेंट बनता है, इन्हों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है इस दे लई क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ USA ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਜੇ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵਿਜੇ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਖਲੇ ਸੀਗੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾ ਸੀਗੇ USA ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ, इन्हों की जगह पर एंबेसडर बनाए गए हैं तरनजीत सिंह संधू, ठीक है, याद रखने ने। इस तो इलावा USA बारे याद रखना, USA के इलैक्शनस होने ने, ठीक है, क्योंकि इंपीचमेंट मोशन पास किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ठीक है जी। इस तो इलावा ये 2 ऑप्शंस ने अपने विनय मोहन खटारा, विजय मोहन खवात्रा, सॉरी विजय मोहन खवात्रा, ये की ने, ये ने फ्रांस के एंबेसडर ने, इंडियन एंबेसडर टू फ्रांस विनय मोहन खवात्रा। पवन कपूर ने UAE दे, ये अपन रिसेंटली डिस्कस किए सी, पवन कपूर रिसेंटली अपॉइंटेड ने UAE दे एंबेसडर ने इंडिया द्वारा, ठीक है। UAE बारे याद रखना, UAE के जोड़े इस तो इन्हों तो पहले एंबेसडर से नवदीप सिंह सूरी, नवदीप सिंह सूरी से उन्होंने अवार्ड दिता सी उत्थे दे प्रेसिडेंट द्वारा, ऑर्डर ऑफ जईद सैकेंड, ऑर्डर ऑफ जईद सैकेंड का अवार्ड दिता गया सी किन्हों, नवदीप सिंह सूरी नूं। उन्हों का नाम याद रखना इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिता गया सी फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जईद, फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जईद दिता गया सी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नूं, उन्होंने प्रेसिडेंट द्वारा। नैक्सट है इन विच सिटी 3rd ग्लोबल पोटैटो कॉन्कलेव वाज ऑर्गेनाइज्ड, किहड़ी सिटी दे विच 3rd ग्लोबल पोटैटो कॉन्कलेव हैल्ड किया गया, किहड़ी सिटी दे विच किया गया,
ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਂਧੀਨਗਰ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 3rd ਗਲੋਬਲ ਪੋਟੈਟੋ ਕੌਨਕਲੇਵ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। अहमदाबाद बारे याद रखना है। 31st इंटरनेशनल काइट फैसटिवल 31st इंटरनेशनल काइट फैसटिवल हैल्ड किया गया सी अहमदाबाद। इस तो इलावा वल्लभ भाई पटेल जी का सैकेंड टॉलेस्ट स्टैचू 50 मीटर का ब्रोंज का स्टैचू कितने रिवील किया गया सी? अहमदाबाद दे विच। अहमदाबाद कितने? साबरमती रिवर के किनारे है, ये याद रखना है। लोथल कितने? लोथल भी गुजरात के विच है। लोथल के विच किया गया सी फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जाएगा लोथल दे विच। ठीक है। न्यू दिल्ली बारे फैक्ट याद रखना है। न्यू दिल्ली विच काफ़ी ज़्यादा वैसे कॉन्फ्रेंसिस होंदियां ने, काफ़ी ज़्यादा इनोग्रेशन होंदियां ने। ठीक है, हर एक डिस्कस करनी तो एक सैशन दे विच मुश्किल है, आप हर दिन कुछ ना कुछ अलग डिस्कस करा करांगे। वूमेन विद व्हील्स, अज आप डिस्कस कर रहे हैं वूमेन विद व्हील्स। इनिशिएटिव कितने किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। वूमेन विद व्हील्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली दे विच इसनूं कीता गया। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा चेन्नई के रिगार्डिंग याद रखना है। चेन्नई के रिगार्डिंग इंपोर्टेंट चीज़ सी कि चेन्नई दे विच एनी बेसेंट नाम का शिप है जिहड़ा उसनूं कमीशन किए गए सी। 2 शिप कमीशन किए गए सी, एक एनी बेसेंट, एक किया गया सी अमृत कौर। 2 कोस्ट गार्ड शिप कमीशन किए गए सी इंडियन कोस्ट गार्ड दे विच। कित्थे किए गए सी? कोलकाता दे विच। कोलकाता दे विच किए गए सी किन्ना द्वारा? डिफेंस सैक्रेटरी द्वारा। डिफेंस सैक्रेटरी कौन ने? डिफेंस सैक्रेटरी ने अपने अजय कुमार डिफेंस सैक्रेटरी द्वारा किया गया सी कोलकाता दे विच एनी बेसेंट और अमृत कौर नाम के शिप्स नूं कमीशन। ठीक है, जिस दे विच दस्सिया गया सी कि एनी बेसेंट शिप होएगा जाके कित्थे होल्ड करेगा? चेन्नई दे विच। अमृत कौर करेगा हल्दिया दे विच। हल्दिया और चेन्नई, ये 2 प्लेसिस का नाम याद रखना है। इस तो इलावा कोलकाता बारे याद रखना है। कोलकाता दे विच इन्हां नूं कमीशन किया गया सी अजय कुमार डिफेंस सैक्रेटरी द्वारा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नैक्सट है इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मैट्रो प्रोजैक्ट। इंडिया का पहला अंडर वाटर मैट्रो प्रोजैक्ट कित्थे स्टार्ट किया जाएगा? यह किया जाएगा, करैक्ट ऑप्शन इज सैकेंड ऑप्शन कोलकाता दे विच इसनूं किया जाएगा। ठीक है, कोलकाता दे विच हुगली रिवर के उत्ते यह प्रोजैक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, हुगली रिवर है जी कोलकाता, यानी कि जो कोलकाता है वैसे हुगली रिवर के उत्ते ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो इत्थे यह प्रोजैक्ट लगाया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन आप डिस्कस कर लें। बाकी ऑप्शन के विच एक है भोपाल बारे याद रखना है। नैशनल शूटिंग चैंपीयनशिप हैल्ड की गई सी। नैशनल शूटिंग चैंपीयनशिप हैल्ड की गई सी भोपाल मध्य प्रदेश के विच। भोपाल मध्य प्रदेश के विच नैशनल शूटिंग चैंपीयनशिप हैल्ड की गई सी 63rd एडिशन सीगा, जिस दे विच सौरभ चौधरी का नाम इंपोर्टेंट बनता है। सौरभ चौधरी ने जिता सी 10 मीटर एयर पिस्टल ईवेंट के विच गोल्ड मैडल। 10 मीटर एयर पिस्टल ईवेंट के विच गोल्ड मैडल जितया सी भोपाल मध्य प्रदेश के विच 63rd नैशनल शूटिंग चैंपीयनशिप के विच। ठीक है, अच्छा एक मध्य प्रदेश की गल आई है। मध्य प्रदेश के विच एक प्लेस है मोहो, MHOW। इत्थे एक मिसाइल का टैसट किया गया सी। किहड़ी मिसाइल का किया गया सी? किहड़ी मिसाइल का टैसट किया गया सी? स्पाइक मिसाइल का टैसट किया गया सी मोहो मध्य प्रदेश के विच। MHOW मोहो मध्य प्रदेश के विच। ठीक है, एक किहड़ी कंट्री तो ली गई है? इजराइल तो। किहड़ी कंट्री तो ली गई है? इजराइल तो ली गई है। टैसट किया गया सी मोहो मध्य प्रदेश के विच। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा बेंगलोर बारे याद रखना है। 107 इंडियन साइंस कांग्रेस हैल्ड की गई सी 107th एडिशन बेंगलुरु कर्नाटका दे विच। कोलकाता के बारे भी याद रखना है। कोलकाता के हैल्ड किया गया सी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फैसटिवल हैल्ड किया गया सी कोलकाता के विच। इस तो इलावा 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फैसटिवल भी हैल्ड किया गया सी कोलकाता के विच। कोलकाता कित्थे है? वेस्ट बंगाल दे विच है, ये याद रखना है। चंडीगढ़ अपना पंजाब दे विच है। इत्थे दे रेलवे स्टेशन के उत्ते मैट्रो की गल आई, इस करके रेलवे स्टेशन वाले
पॉइंट्स अपने इंपोर्टेंट बन जाते हैं। रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ पंजाब दे विच है, इस दा रेलवे स्टेशन 5th रेलवे स्टेशन बनया सी नेविगेशन फैसिलिटी दे लई, नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने दे लई विजुअली इंपेयर्ड पीपल्स नूं, ठीक है। फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया का पहला और कंट्री का 5th रेलवे स्टेशन बनया सी चंडीगढ़। नासिक रेलवे स्टेशन कित्थे है? महाराष्ट्र दे विच है। नासिक रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र दे विच है। ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया सी नासिक दे विच, नासिक रेलवे स्टेशन के उत्ते बनाया गया ऑक्सीजन पार्लर, ठीक है जी, ये याद रखने। नेक्स्ट है हु वाज नॉमिनेटेड एज लाइफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन टेनिस फेडरेशन। एशियन टेनिस फेडरेशन के लाइफ प्रेसिडेंट बनाए गए ने, नॉमिनेट किए गए ने, कौन किए गए ने? अनिल खन्ना। फर्स्ट ऑप्शन इज अपना करैक्ट आंसर होएगा। अनिल खन्ना को बनाया गया लाइफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन टेनिस फेडरेशन। अच्छा, अर्जुन मुंडा कौन ने? अर्जुन मुंडा अपने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने अर्जुन मुंडा। खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने, इन्हों के रिगार्डिंग याद रखना है। इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया गया आर्चरी एसोसीएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया अर्जुन मुंडा नूं। SK सानी ने याद रखना है वाइस चीफ ऑफ आर्मी बनाया गया सी SK सानी नूं, ठीक है। अच्छा, ये वाइस चीफ बनाया गया था। वाइस चीफ कौन सी पहले? मनोज मुकुंद नरवाने अपने वाइस चीफ सीगे, इन्हों बना दिता गया आर्मी चीफ कौन सी? आर्मी चीफ सीगे बिपिन रावत, इन्हों बना दिता गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाएगा फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत नूं, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, आर्मी चीफ अपने दसते हैं मनोज मुकुंद नरवाने। नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ कौन ने? करणबीर सिंह ने नेवी के चीफ। BS धनोहा पहले सीगे एयरफोर्स के चीफ। इन्हों तो बाद कौन बने? एयरफोर्स के चीफ BS धनोहा तो बाद कौन बनाए गए सीगे? एयरफोर्स के भदौरिया, ठीक है, ये याद रखने ने। इस तो इलावा माइकल डी पात्र बनाए गए ने RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर, ठीक है। की होंदा एक गवर्नर होंदे ने ते 4 डिप्टी गवर्नर होंदे ने, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होंदे ने। चौथी पोस्ट खाली सी वायरल वी आचार्य के कारण, वायरल वी आचार्य ने रिजाइन किया सी, इस दे लई माइकल डी पात्रा नूं बनाया गया चौथे डिप्टी गवर्नर, ठीक है जी। नेक्स्ट है HK जोशी याद रखने ने, यह बनाए गए ने चीफ मैनेजिंग डायरैक्टर CMD बनाए गए ने किस दे? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दे बनाए गए ने CMD HK जोशी, ठीक है जी, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है विच कंट्री अनवील्स 50 पेंस कॉइन मिंटेड टू मार्क ब्रिटेन एग्जिट नूं मार्क करने के लिए किहड़ी कंट्री ने 50 पेंस कॉइन बनाया? 50 पेंस का कॉइन बनाया किहड़ी कंट्री ने? ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटेन ने बनाया है। किस दिन यह एग्जिट कर रहा है? 31 जनवरी। इंपोर्टेंट डे याद रखना है, 31 जनवरी को यह एग्जिट कर रहा है ब्रिटेन चो, सॉरी यूरोपियन यूनियन तो ब्रिटेन एग्जिट करेगा, ठीक है। इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने बोरिस जॉनसन, याद रखने ने बोरिस जॉनसन इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने। इस तो इलावा याद रखना है कॉइन के उत्ते लिखा गया, कॉइन के उत्ते कुछ छपया होया, वो की छापया इन्होंने नोट कर लियो। पीस प्रोस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस, नोट कर लियो। पीस प्रोस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस, ठीक है, याद रखने। कॉइन के उत्ते छापे गया 50 पेंस का एक कॉइन बनाया गया, ठीक है। अच्छा, बाकी कंट्रीज़ बारे कुछ डिस्कस कर लेने आप। बाकी कंट्रीज़ बारे कुछ इंपोर्टेंट चीज़ां जिमें कि रशिया बारे डिस्कस किया सी। गंगा वोल्गा डायलॉग किहड़ी कंट्री दे विच है? इंडिया और रशिया दे विच, ठीक है। वोल्गा रिवर कित्थे है? रशिया दे विच है, ये याद रखने। कैपिटल मॉस्को, करंसी रूबल। चाइना दे विच कोरोना वायरस फैलिया होया है। चाइना दे विच किहड़ा वायरस फैलिया?
कोरोना वायरस, इसनूं वुहान वायरस भी कहा जाता है, वुहान वायरस भी कहा जाता है कोरोना वायरस नूं। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। इस तो इलावा 2022 ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ, ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 2022 ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਸਕੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਸਕੋਟ ਸੀਗਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਪਾਂਡਾ ਮੈਸਕੋਟ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਡਰਿਡ ਹੈ, ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ COP 25 ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿਲੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਂਟੀਆਗੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ COP 26 ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? COP 26 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, COP 26 ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 35th ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3rd RCEP ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 14th ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, 36th ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 36th ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟੈਬੀਲੀਓ हैज़ बीन चूजन एज बेस्ट टैबीलियो अवार्ड्स फॉर रिपब्लिक डे परेड 2020। रिपब्लिक डे की परेड के लिए किहड़े स्टेट के टैबीलियो नूं फर्स्ट प्राइज़ दिता गया, यानी कि बेस्ट टैबीलियो अवार्ड यूज दस्या गया। टैबीलियो मतलब झांकी, जिहड़ी झांकियां शो कीतियां गईयां सी रिपब्लिक डे की परेड दे विच किहनूं दिता गया? असम नूं फर्स्ट प्राइज़ दिता गया, यानी कि बेस्ट दिता गया असम नूं। मेनली असम का जिहड़ा यह टैबीलियो सीगा, यानी कि जिहड़ी झांकी सी किस दे उत्ते बेस सीगी? ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੂਡਨ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਡਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਅਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬੇਸ ਸੀਗੀ ਰਕੂਨਾ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸੀਗੀ ਆਫ ਲੋਰਡ ਲਿੰਗਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਕੂਨਾ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਸੀ। यूपी ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ यूपी ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ यूपी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੋਆ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੇਵ ਦਾ ਫਰੋਗ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਗੋਆ ਦੀ ਝਾਂਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ 550th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ठीक है, ये याद रखने ने। इस तो इलावा एक जम्मू एंड कश्मीर की इंपोर्टेंट बन जाती है बैक टू विलेज कैंपेन के उत्ते सी जम्मू एंड कश्मीर की। गुजरात की इंपोर्टेंट है रानी की वाव के उत्ते है। गुजरात की झांकी सी जिहड़ी रानी की वाव के उत्ते सी। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, रिपब्लिक डे परेड के फस्ट टाइम यूज़ किए गए सी अपाचे और चिनूक 2 हैलीकॉप्टर यूज़ किए गए सी फस्ट टाइम। धनुष गन शो की गई सी फस्ट टाइम। ठीक है, ए सैट मिसाइल है जी ये शो की गई सी इस दे विच। ठीक है, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जी ये भी शो की गई सी। ए सैट की फुल फॉर्म है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। नैक्सट है, विच डे इज सैलीब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ कमैमोरेशन इन मैमरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होंगे विपता। ठीक है, उन्होंने विपता के जोड़े परसन की डैथ हो जाती है या फिर जोड़े उसके विक्टिम बनते हैं। ठीक है, उन्होंने मैमरी के लिए उन्होंने याद करने के लिए एक दिन मनाया जाता है। किहड़ा दिन मनाया जाता है? 27 जनवरी नूं यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। कदों मनाया जाता है? 27 जनवरी नूं। बाकी दिन आप डिस्कस कर लें। हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी नूं। 15 जनवरी नूं मनाया जाता है आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी नूं। इस तो इलावा IMD डे
इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 15 जनवरी ਨੂੰ। 18 जनवरी ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ NDRF ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 18 जनवरी ਨੂੰ। 19 जनवरी ਇਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 19 जनवरी ਨੂੰ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ 28 जनवरी। 28 जनवरी ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ? 155th। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 155th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 28 जनवरी 2020 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 150th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 145th ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? IMD ਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ IMD ਡੇ। 145th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ। 123rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ 123rd ਕਿਸ ਦਿਨ? 23rd जनवरी ਨੂੰ 123rd ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 141 ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 141 ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੇ, 16 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 पद्म भूषण ने और 118 की हो गए पद्मश्री। ठीक है, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फर्स्ट एडिशन होएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच हेल्ड किया जा रहा है। कदों तो हेल्ड किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 22 फरवरी तो 22 फरवरी तो यह शुरू होएगा, 1 मार्च तक यह चलेगा। ठीक है, 22 फरवरी तो 1 मार्च तक यह चलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कितने हेल्ड किया जा रहा है? KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, होस्ट किया जा रहा है इंडियाज़ हॉकी हब द्वारा इसनूं होस्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, उड़ीसा की गल आई है, उड़ीसा दे विच हेल्ड होएगा 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2023 ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ? 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਰੋਕੇਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट है by which year government of India aims to 100% electrification of Indian Railways। इंडियन रेलवेज़ ਨੂੰ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम रखा है, किहड़ा टारगेट रखा है? ये रखा है 2024। कितना रखा है? 2024 टारगेट रखा है कि इंडियन रेलवेज़ ਨੂੰ 100% इलैक्ट्रीफाई कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। मेनली गवर्नमेंट जी इंडियन गवर्नमेंट है ये जिन्हें भी टारगेट रख रही है ज़्यादातर 2024 के रखे जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना है 2024 के ज़्यादातर टारगेट रखे जा रहे हैं, जिस दे विचों 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ किया जाएगा। अगर यह किया गया तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाएगी। याद रखना है इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन जाएगी अगर ये इसनूं कंप्लीट कर देती है 100% इलैक्ट्रीफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, रेलवे मिनिस्टर कौन ने? पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने। इस तो इलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो ये याद रखने ने। 2022, 24, 26, 28
कुछ इंपोर्टेंट ईयर्स ने स्पोर्ट्स इवेंट्स इन्हां नाल जुड़ते हैं किहड़े ओलंपिक डिस्कस कर लेने 2022 विंटर ओलंपिक्स होणगियां चाइना बीजिंग दे विच हुणे आपां डिस्कस कीती सी चाइना बीजिंग दे विच विंटर ओलंपिक्स होणगियां 2022 दे विच 2024 दे विच समर ओलंपिक्स होणगियां पैरिस फ्रांस दे विच समर ओलंपिक्स हैल्ड कीते जाणगियां 26 विंटर ओलंपिक्स कित्थे होणगियां 2026 इटली दे विच होणगियां 2026 दे विच 2028 समर ओलंपिक्स होणगियां ये होणगियां लॉस एंजलस USA कित्थे होणगियां लॉस एंजलस USA दे विच ठीक है ये याद रखनियां ने 2020 इस साल होणगियां अपने टोक्यो ओलंपिक्स यानी कि समर ओलंपिक्स ने टोक्यो दे विच होणगियां टोक्यो कित्थे है जापान दे विच ये हैल्ड कीतियां जाणगियां ठीक है जी ये याद रखनियां ने नैक्सट है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मर्जन सैरेक हैज़ रिसेंटली रिजाइन मर्जन सैरेक ने रिजाइन किया है ये किहड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सीगे ये सीगे स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर सीगे ये ठीक है इन्होंने रिजाइन कर दिता है ठीक है स्लोवेनिया की कैपिटल याद रखनी है जुबलीजानो यूरो वैसे ये नाम एल तो शुरू होंगे पर एल साइलेंट होंगे इस दे विच ते की होगी करेंसी यूरो और कैपिटल जुबलीजानो ठीक है अच्छा ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना करेंसी यूरो वियना दे विच एक इंपोर्टेंट हैडक्वार्टर भी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हैडक्वार्टर है वियना दे विच हंगरी कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी इत्थे फोरिंट चलती है FORINT फोरिंट इटली कैपिटल रोम और करेंसी यूरो क्रोशिया इंपोर्टेंट है क्रोशिया कैपिटल जैग्रेब और करेंसी इत्थे KUNA करेंसी इत्थे की चलती है कूना ठीक है जी ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने अज दे लई बस इन्ना ही आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा सैशन नूं लाइक ते शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन गुड बाय